Okay, so who want to recapitulate today? Can you raise your hands? Yes, sir, me. Okay, Sudevi Panda, I think you can go ahead today. Okay, sir. Thank you, sir. Uh, in the previous class, we learned about the site-to-site VPN gateway connection. It is used to connect our on-premises network to an Azure virtual network over an VPN tunnel. This type of connection requires an on-premises gateway with a static public IP address. And here the static IP means the IP address will be constant for the gateway and it won't be changing after some time. Then this static IP is given to the local network gateway to configure it, and the connection is established via internet. This local network gateway can allow some IP addresses of subnets or the whole network as per the client's demand. And this local network gateway will be associated with the VPN gateway, and it will be then associated with the virtual network and to the gateway subnet. By this, we will be able to connect from one site to another and do our task as per requirement. Now, coming to the lab session, first we created a resource group in the East US region, and then we created a virtual network inside it and added two subnets and a gateway subnet. Then we created a virtual network gateway with SKU as VPN gateway 1 and generation as generation 1 for the virtual network. We gave it a public IP address name. And then while it was establishing the connection between the VPN gateway and virtual network, at the same time, we configured our local network gateway into the same resource group. In the endpoint, we gave the IP address since we have the static public IP in the on-premises gateway. If it would have been dynamic, then we could have used fully qualified domain name. By this, we can map the IP address even if it were to be changed after some time. And in the address space, we give the IP of the subnets that we have to allow to access the data. Here we could have used allowed the whole network by not mentioning anything in the address space. So when the both are virtual network and gateway, virtual network gateway and local network gateway are deployed, we then added a site-to-site connection between them by using a pre-shared key, which was generated by a strong password generator. When the client will start configuration on premises, he or she needs to enter this pre-shared key for the configuration to be successful. Then we downloaded the configuration with the particular vendor. Here we wanted Sophos to be our vendor, but the option was not present. Hence, we chose the generic sample. Then this downloaded configuration has all the details that is to be needed by the client. It even has the pre-shared key and all the IP addresses. Then our Azure site is established. By this, our client can access any resources inside our virtual machine while sitting in another site. And from the clip that you have given, we learned that Azure IP is defined by the help of SKU. SKU stands for Stock Keeping Unit, and it is of two types, basic and standard. In basic, we can only choose the region of deployment, and we can even migrate them. But in standard, we can choose the region of deployment. We can even choose the availability zone, but we cannot migrate them. Generally, in case of production and all, we use this SKU as standard. Now, coming to the hypervisor, we know that Azure has its own hypervisor known as Hyper-V. So it helps us to virtualize the physical machines that it has so that we can use them. Suppose inside one hypervisor, a virtual machine is deployed and we want to stop it. Then we can do it in two ways, by going inside the virtual machine and stopping it, or by stopping it from outside. So, there's a difference between these two. Whenever we shut the virtual machine down by going inside it, only the VM is stopped, but it is not deallocated, and it still reserves the hypervisor. So in this case, we will be charged for it. But if we stop it from outside the console, the virtual machine is stopped, but it is deallocated. So it leaves the hypervisor. Hence, we are not charged for it.
So both of them has their own advantages, and Azure gives us this flexibility to choose according to our need, which is not given in AWS. So this much. Thank you, sir. Yeah, really very good, Sudevi. Yeah, this is what we were expecting. Yeah, so this signifies that okay, you have understood the things in a very better way. Okay. So yeah, very good. Keep it up, and I'm expecting the same to go into the next classes as well. Okay, so few people should come in, and just like today we have given opportunity to Sudevi, maybe next time some other people can also join, right? So yeah, I think Nitish is there. I'll hand this over to Nitish now. So over to you, Nitish. Yeah. So hi everyone. Good morning. So it was a very good recapitulation session. So let me share my screen first. So is my screen visible to all you guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Perfect then. Come on. So just a brief introduction about me. My name is Nitish. I'm a senior iOS engineer at Mindfy Solutions. So I basically develop apps for iOS, and I'm an alumni of Silicon as Sumit is. So we both graduated in 2021. I'm from computer science and engineering. So yeah, let's get started. So we are looking forward to this whole Azure course. I hope it's going all good till now, and I will be taking few of the classes from today. Okay. Chalo, now let's get started. So the topic today we are going to talk about is NSG. So just give me a minute. NSG. Anyone with the full form of NSG? Anyone? No one? It's Network Security Group. Okay. So this is the full form of NSG, that is the Network Security Group. So पहले ये अगर ये समझने से पहले let's understand some basic concepts and basic things about these servers and how many kind of servers are there. कुछ database servers होते हैं, कुछ web server होता है. So let's take an example of this Flipkart website. Okay. चलो, my screen is visible to all you guys, right? And I'm loud and clear as well. Yes, sir. Yes, Okay. sir. चलो perfect. ठीक है. तो now let's talk about let's just have a look on the Flipkart website. So anything that comes up to us in the UI that is known as front end. Okay. So this is the front end part of this Flipkart. So we also have the database जहाँ पे हमारा यूजर डेटा स्टोर हो सकता है, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के डिटेल्स स्टोर करके रखते हैं. These images, these data, all are coming from a database, right? And this is just a website with all the contents as in front end. ठीक है. तो एक कभी भी एक वेबसाइट बनता है तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है. द फ्रंट एंड इज ऑल द यूआई दैट यू सी in your mobile application or in your Windows application or the websites. So whatever that is visible to the user, that is the front end. And the backend consists of all your servers going on for the database part, for the configuration part. तो वो सारे backend के हमारे पास वहाँ पे सारे data होते हैं. For example, if suppose I search for something, suppose I search for this item. Okay, so I'm getting these kind of data, and that's coming from some kind of a database. See, you can see that there's query something going on at the back end. Suppose you want to inspect as well. So I hope you know how to inspect elements. Okay, so this is how you inspect. See what are the things over there. See what are the references. For example, this image might have been hosted somewhere. वो image का भी अपना URL होगा. So see, दो part होता है. That is front end and back end. Okay, this is clear. तो अब let's talk about something general. In general, for example, the Flipkart's front end engineer जो ये UI develop कर रहे होंगे, क्या उनको पूरा बैक एंड मतलब पूरे डेटाबेस का जो एक्सेस है वो देना सही है कि नहीं? What do you think? What do you think? Should we give the full access or the whole database access to the front end engineer? What do you think? Anyone? No, sir. ठीक है, चलो.
तुम बोल रहे हो नहीं देना चाहिए, ठीक है। इन जनरल व्हाई शुड अ फ्रंट एंड इंजीनियर शुड हैव द डेटाबेस एक्सेस, or rather why should as a public we as a normal public should not have access to the databases, to the database server of any website, ठीक है। तो ये सब चीज कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और ये सारी चीज का हम एक्सेस रिवोक कैसे करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो मोस्टली दिस टॉपिक कम्स अंडर NSG, दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, वी विल बी प्लानिंग आउट एन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले, फिर उसके हिसाब से हम लोग अपने चीज को प्लान करेंगे कि हाउ डू वी अप्लाई दी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स ओवर देयर, और वो करता कैसे है, वो सारे एक्सेस को रिवोक कैसे करता है, व्हाट एवर परमिशंस दैट वी गिव टू आवर पर्टिकुलर सबनेट और पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो anyone anonymously please just keep telling me what are the things that are currently on the hierarchy. For example, I'm just starting it up with for example, just give me a second. Oh, sorry. So deselect. Okay. So on the top, you have your Azure subscription. On the top, you have your Azure subscription. ठीक है, ये सबसे पहला चीज होता है। And inside Azure subscription we have various resource group. resource group, yes. चलो एक resource group हम यहाँ बनाते हैं, and this is our resource group. अब बताओ Networks. Subnet, virtual network. चलो ठीक है। So this will be my VNets, means virtual network, ठीक है। virtual network, चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद subnets, ठीक है। So there can be many subnets. yes sir. For the time being हम बोल देते हैं कि चलो 2 सबनेट बनाते हैं। So this will be my subnet 1 and this will be my subnet 2. अब बताओ Virtual machines. वर्चुअल मशीन कहाँ होते हैं? सबनेट के अंदर। ठीक है, चलो सबनेट 1 के अंदर हम 2 VM बनाते हैं और सबनेट 2 के अंदर हम 1 VM बनाते हैं। These all are VMs. VM3, VM1, VM2. चलो आई थिंक सो दीज थिंग्स ऑल आर क्लियर। सबको पता है कि एक सब्सक्रिप्शन होता है, इसके बेसिस पे हमारा बिलिंग होता है, फिर इसके बाद हमारा रिसोर्स ग्रुप होता है, रिसोर्स ग्रुप में वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं, वर्चुअल नेटवर्क्स में हम वेरियस सबनेट्स बना सकते हैं एंड इन सबनेट वी क्रिएट आवर ओन वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 वर्चुअल मशीन्स हैं, ठीक है। लेट्स ड्रॉ दिस आवर वर्चुअल मशीन बनाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वर्चुअल मशीन, सेकेंड वर्चुअल मशीन and third virtual machine, ठीक है। सो दीज ऑल आर माय वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो ये जो मेरा पहला वर्चुअल मशीन है, दिस माय फर्स्ट वर्चुअल मशीन, इसको हम लोग बोलते हैं कि तुम जो हो हमारे मेन सर्वर हो। मेन सर्वर को हम लोग जंप सर्वर भी बोल सकते हैं या बैस्टियन सर्वर भी बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग ये बोलते हैं दीज आर माय जंप सर्वर। एंड दिस जंप सर्वर कोई हम लोग हिट करेंगे एंड दिस विल हैव इट्स ओन पब्लिक IP, इसके पास एक अपना पब्लिक IP होगा। And these server, this VM1 and VM2, हम यहाँ पे लिख देते हैं VM1, this is VM1 and this will be my VM2 and this will be my VM3,
ठीक है, ये मेरा जंप सर्वर रहेगा, इसके पास एक पब्लिक आईपी रहेगा। ठीक है, ये जो सेकंड वाला होगा, ये जो सेकंड वाला होगा, ये मेरा एक वेब सर्वर होगा। ठीक है, ये एक मेरा वेब सर्वर होगा, वेब सर्वर। इसके पास भी अपना एक पब्लिक आईपी, इसके पास भी एक अपना आईपी होगा। ठीक है, अब ये जो मेरा लास्ट सर्वर होगा, ये लास्ट सर्वर विल बी माय डीबी सर्वर। ठीक है, दिस विल बी माय डीबी सर्वर। ठीक है, और इसको हम प्राइवेट आईपी देंगे, प्राइवेट आईपी। चलो ठीक है, अब ये वीएम को, अब वीएम को तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन में? व्हाट आर द वेरियस वेज टू कनेक्ट टू अ वर्चुअल मशीन? क्या क्या है? आरडीपी कनेक्शन करते हैं ना, समवेयर इन Yes, sir. बिटवीन। ओके ओके श्योर। ठीक है, तो फिर वी विल बी टॉकिंग अबाउट ये जो हमारा ये होगा, ये हम लोग आरडीपी कनेक्शन से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आरडीपी कनेक्शन भी कर सकते हैं, एंड वी कैन इवन यूज आवर एसएसएच कनेक्शंस एज वेल। ठीक है, तो नाउ वी कैन जस्ट वी विल बी मेकिंग these two VMs in a single subnet. ठीक है, so this subnet, this will be at subnet 1. And this will be in subnet 2. This will be my subnet 2. चलो ठीक है, so this is the infrastructure that we are going to design today. और हम इसमें बहुत सारे चीज चेक करने वाले हैं कि ये जो डेटाबेस का सर्वर है, ये डेटाबेस सर्वर है, that how we are going to really access the database, हम इसे प्राइवेट आईपी से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, and how do we not allow traffic to this database server from anywhere except a few means except a few things. ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, लेट्स क्रिएट आवर रिसोर्स ग्रुप एंड वर्चुअल नेटवर्क्स एंड जस्ट क्रिएट जस्ट अ जंप सर्वर। पहले जंप सर्वर बनाते हैं, उसके बाद हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में और भी कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलो, नाउ एनीवन just tell me how do we create resource groups, then followed by virtual networks and then subnets, then VM. Who is going to tell? Yes, और sir. ओके चलो, come on Smruti. First we'll create, click on create. ओके ओके चलो क्रिएट करते हैं रिसोर्स ग्रुप। Then we'll put a name, anything. Yes, sir. ठीक है, चलो ये NSDRG है, this Yes, should sir. be Central. Yes, sir. Yes. ठीक है। Then we have to tab on. Yes, sir. ओके चलो Create. Yes, sir. चलो रिसोर्स ग्रुप Yes, sir. क्रिएटेड। ठीक है, नाउ अब क्या बनाते हैं नेक्स्ट? Sir, virtual networks. चलो ठीक है, लेट्स क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क। Create. Yes, sir. NSGRG. इट वुड बी माय NSG VNet। चलो ठीक है, ये सबनेट Then we हटा have to देते हैं। delete this subnet. Yes, sir. या मोस्टली these are the default subnet, you can give your own subnet। ठीक है, Yes, चलो हम sir. अपना Yes, सबनेट sir. देते हैं, my subnet 1। ठीक है, and let's give this range as 10.0.1.0/24। ठीक है, चलेगा? Yes, sir. Add, ठीक है, next security, disable next tags, Next. create। चलो we have only one subnet yet, okay? Yes, sir. Create। Let this deploy first। चलो
deployment successful. Go to Go resource. to the resources. Okay. Now we have to add another subnet. ठीक है? So कैसे करें दूसरा subnet? Yes, sir. So go to the virtual machines. Virtual machines. No, sir. No, sir. We have to add a subnet. So Add go a to the, subnet. Yeah. go to the subnet section. Add another subnet. Let it be my. वो क्या था? Subnet 1 था ना? My Yes, sir. subnet. Subnet 1. ठीक है, ये नया my subnet 2 कर देते हैं, ये 0.10.0. ये था, इसको 2 कर देते हैं. 2. Let it be as it is. चलो सेव कर देते हैं. चलो अब हमारा क्या क्या काम कंप्लीट हो गया है. वी हैव नाउ कंप्लीटेड आवर रिसोर्स ग्रुप, वी हैव कंप्लीटेड आवर नेटवर्क, वी हैव क्रिएटेड आवर सबनेट्स एज वेल. ठीक है, नाउ द थिंग्स दैट रिमेन इज कि अब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे. तो चलो पहले एक ही वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, दैट टू इन सबनेट 1. ठीक है, चलो Yes, sir. नाउ वी हैव टू गो टू वर्चुअल. Virtual machines. ठीक है, We have to create and Azure machine. Yes. And Azure. Yes. Virtual. let's name this as my VM, my jump VM. ठीक है, रीजन पहले ये कर लेते हैं. लेट्स सेलेक्ट विंडोज 2016. ठीक है, यूएस, सेंट्रल यूएस आ गया. नो इंफ्रास्ट्रक्चर. क्या हो गया? अच्छा, अंडरस्कोर नहीं होगा सर. तो नहीं होगा. ठीक है, चलो माई जम VM. दिस इज माई जम VM. दिस इज सेंट्रल यूएस, विंडोज 2016. लेट्स टेक दिस वन. लेट्स कीप द यूजर नेम सिलिकन. पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड @123. कंफर्म पासवर्ड. ठीक है, पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स अभी देख लो, बस RDP अलाउ कर रहे हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट. ठीक है, NSG VNet पे है. माई सबनेट विल बी सबनेट 1. पब्लिक IP, ये कुछ पब्लिक IP एलोकेट होगा. दिस NIC network security group, we have just put it to basics. ठीक है, this was the thing that this is the thing that we are going to learn today. ठीक है, allow selected ports 3389. next management, next monitoring, next advance, next tags, review and create. एक्सक्यूज मी सर. Yeah. सर वहाँ पे जहाँ पे RDP हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे वहाँ पे आई थिंक HTTP और HTS करके और कुछ सिलेक्ट कर रहे थे पहले. अच्छा, पहले कर रहे थे. देखो RDP वो शायद तुम लोग कुछ सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे होगे, तो हो सकता है कि तुम्हें वहाँ पे वेब एक्सेस देना पड़ता होगा, कि तुम उस सर्वर को डायरेक्टली बस वो RDP के थ्रू भी नहीं जा सकते हो, या तुम उसको एज अ सर्वर के थ्रू भी तुम उसको ट्रीट कर सकते हो. तब वो हम लोग HTTP HTTPS भी इनेबल कर देते हैं. बट वी आर जस्ट गोइंग टू जस्ट कनेक्ट टू दी सर्वर, कनेक्ट टू दी VM. तो अभी सिर्फ हम RDP रहने दिए हैं कि हमें बस रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन तो इनेबल करके दे दो. ओके सर. ठीक है, चलो क्रिएट करते हैं. Let's wait.
Chalo, so deployment is complete. So we will be just going to the resource and just check that whatever things that are connected. तो देखो ये हमारे पब्लिक हमारे VM को एक पब्लिक IP मिला हुआ है 20.9.12.164. ठीक है, दिस इज द पब्लिक IP अवेलेबल सेंट्रल यूएस. ये सब कुछ सही है. वी हैव एवरीथिंग कॉन्फ़िगर्ड ओवर हियर. अब तुम इसके नेटवर्किंग सेक्शन पे जाओगे, अपने पर्टिकुलर VM के नेटवर्किंग सेक्शन पे जाओगे, तो यहाँ पे आके तुम एक चीज नोटिस करोगे तुम लोग कि दैट वी हैव समथिंग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप माई जंप VM NSG. ये हमने कहीं बनाया नहीं था, ये ऑटोमेटिक बन के आया है. ठीक है. So this my jump VM NSG has been attached to the network interface of my jump VM. मतलब हमारे नेटवर्क इंटरफेस में ये NSG आके अटैच हो गया है. NSG अटैच होने का मतलब क्या हो गया कि हमारे नेटवर्क पे, हमारे VM पे एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आके अटैच हुआ है एंड दैट हैज सम रूल्स. ठीक है. अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इनबाउंड पोर्ट रूल्स, आउटबाउंड पोर्ट रूल्स, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स, लोड बैलेंसिंग. ठीक है. सो वी आर मोस्टली कंसर्न्ड अबाउट इनबाउंड पोर्ट रूल्स एंड आउटबाउंड पोर्ट रूल्स. ठीक है. तो इसमें जो प्रायोरिटीज जो भी हमारे जो रूल्स है वो हम पहले पढ़ लेते हैं. तो ये बोल रहा है प्रायोरिटी 300 पे RDP ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम इस पे RDP कनेक्शन ले सकते हैं. तो ठीक है, चलो फिर इसका RDP लिया जाए. सो हाउ डू यू कनेक्ट इट वाया RDP? For your Windows machine, you can do MSTSC, and Windows are MSTSC, and you can just copy this IP and you can directly connect it to your VM. But for Mac, I am using this Microsoft Remote Desktop application. I will be adding up the PC over here. ठीक है, मैं PC ऐड करता हूँ अपना, और मैं एक ऑलरेडी यूजर अकाउंट सिलिकन के नाम पे बना के रखा हुआ हूँ, सिलिकन, जिसमें वो पासवर्ड @123 सेव्ड है. I'm just giving it to it. I'm adding it. Let me check if it's going to connect or not. So see, this is my Mac machine. I'm trying to connect it to my VM. See, now I am inside my virtual machine. That too, it's the jump server जो मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया है. अब मैं अपने जंप सर्वर के अंदर आ गया हूँ. ठीक है. अब इसमें अंदर आने का कारण क्या था कि दैट व्हाई वाज आई अलाउड टू एंटर द मशीन? बिकॉज इन द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप देयर वाज एन इनबाउंड पोर्ट रूल एडेड with priority 300 RDP, which said that any source, any destination, if it's RDP, then you allow that particular network to enter this machine. ठीक है. अब इसने मेरे को अलाउ कर दिया. ठीक है. तो अब NSG का एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर तुम लिखना चाहते हो, यू कैन राइट इट डाउन और यू कैन जस्ट लिसन दैट NSG स्टैंड्स फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. NSG स्टैंड्स फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, which is a fundamental networking component in Azure, in Azure, which allows us to control inbound and outbound network traffic to and from Azure resources, providing network security and access control. ठीक है. तो ये network security मेरे को allow करता है to configure my incoming and outgoing traffic. So what do you mean by incoming traffic? Anyone? In raw language, what do you mean by incoming traffic and outgoing traffic from a particular network? Anyone who just want to try in his own words? Sir, incoming means the connection requests that are being incoming from other. Incoming to where? Incoming to where? To the public IP of that VM. To the resource. To Okay. the resource. ठीक है. कोई भी नेटवर्क अप्रोचेबिलिटी टू अ पर्टिकुलर रिसोर्स फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड इनकमिंग ट्रैफिक. एंड व्हाट डू यू मीन बाय आउटगोइंग ट्रैफिक? एनीवन? किसने बोला था अभी? Sir, the response or the database resource that it is providing to the client. Not particularly the response of the database. Whatever traffic is going out of your resource. For example, even when you are trying to reach the internet via your VM, now your VM is trying to connect to the outside world. Okay. Now that's your outbound
आउटबाउंड ट्रैफिक, ठीक है। तो जब भी कोई भी ट्रैफिक को अगर हम कुछ अप्रोच करें टू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द वीएम, देन इट इज कॉल्ड आउटबाउंड रूल, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ये करता क्या है, ठीक है। अब ये इनबाउंड पोर्ट रूल्स है, आउटबाउंड पोर्ट रूल्स है, ये दोनों चीजें भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनबाउंड पोर्ट रूल्स। तो देखो, अब तुम इनबाउंड पोर्ट रूल्स में जाओगे तो यहाँ पे बोला है कि आरडीपी कहीं से भी आए, डेस्टिनेशन कहीं भी जाए, सर्विस मेरे को आरडीपी देना है और ये इसे अलाउ कर रहा है, ठीक है। नाउ दैट्स द रीजन, लेट अस कॉन्फ़िगर दिस, ठीक है, ठीक है, कम ऑन, चलो, ठीक है। सो नाउ आई एम करेंटली इनसाइड माय वीएम, अभी मैं वीएम के अंदर हूं क्योंकि ये मेरे को अलाउ करके रखा हुआ था। व्हाट इफ आई डिलीट दिस, ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। व्हाट इफ आई डिलीट दिस, अब मैंने इसे डिलीट कर दिया, लेट्स डिस्कनेक्ट फ्रॉम इट, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। फॉर रिफ्लेक्टिंग इट, रिफ्लेक्ट करने के लिए इसे कुछ एक बफर टाइम लगता है। अभी जैसे मैं फिर से क्लिक करूंगा ना, ये मेरे को अलाउ कर देगा, ठीक है, ये देखो मेरे को अलाउ कर रहा है। तो लेट्स वेट फॉर अ मिनट और अदर जस्ट डिलीट इट एंड ऐड इट अगेन। ये इसका आईपी है, डिलीट इट, ऐड इट अगेन। अभी इसके पास कुछ भी आरडीपी कनेक्शन के लिए कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। दिस वाज द आईपी आई गेस, सिलिकॉन ऐड, चलो ट्राई कनेक्टिंग इट। सी, अब ये मेरे को अलाउ करने नहीं दे रहा है, ये मेरे को एरर थ्रो कर देगा कि दैट वी couldn't connect to the remote PC, make sure the PC is turned on and connected to the network। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? The only reason because it happened because we have deleted that particular inbound port rule that allowed the RDP connection to a particular virtual machine, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं एक इनबाउंड पोर्ट रूल ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं सोर्स बोलता हूँ कि एक सोर्स जो है ना, एक आईपी एड्रेस आपके पास आने वाला है, एक आईपी एड्रेस से अगर आपको हिट आए, देन यू ट्राई टू अलाउ द कनेक्शन फॉर द आरडीपी, ठीक है। आई विल प्रोवाइड माई आईपी एड्रेस, मेरे अपने मैक मशीन का भी कुछ आईपी एड्रेस होगा ना, तो मैं वो बोलूंगा कि मेरे मशीन से अगर ये आईपी का आपके पास आए कनेक्शन रिक्वेस्ट, देन यू ट्राई टू अलाउ इट, ठीक है। आई विल टेक डेस्टिनेशन एज एनी, सर्विस में बोल दूंगा आरडीपी ले लो, दिस इज गोइंग टू अलाउ, प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी 100 एंड आई विल जस्ट राइट अलाउ नितिश 3389। मैं अपना आईपी चेक कर लेता हूँ कि मेरा पब्लिक आईपी क्या है। सो व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, चेकिंग। ओके, सो दिस इज माय आईपी एड्रेस। मैं बोल रहा हूं अगर मेरे इस आईपी एड्रेस से अगर आपको रिक्वेस्ट आए, देन यू ट्राई टू अलाउ इट, बिकॉज आई हैव ट्राइड माय एक्शन अलाउ। प्रायोरिटी क्या है वो अभी नेक्स्ट चीज देखेंगे, ठीक है। दिस प्रायोरिटी इज 100, लेट्स गिव इट 150, लेट्स गिव इट 150, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। मैं बोल रहा हूँ कि किस सोर्स से आएगा, मैं बोल रहा हूँ कि एक आईपी एड्रेस से आएगा, ठीक है। आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस क्या रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी माय आईपी एड्रेस। सोर्स पोर्ट रेंजेस, मैं सारे पोर्ट को अलाउ कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन वुड बी एनी, एंड व्हाट सर्विस आई नीड, आई नीड द आरडीपी कनेक्शन एंड एक्शन वुड बी अलाउ, ठीक है। मैं इसे ऐड करता हूँ, लेट मी चेक वेदर इट्स अलाउइंग मी द कनेक्शन और नॉट। It's added, yeah, it's added। अब हम बोल रहे हैं कि allow Nitish 3389, this source would be ये, this source would be, destination would be any, and the action would be allow। Now let's wait for a minute and try to connect it, क्योंकि अभी तो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। Let's try to connect it after few seconds। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं।
सी अब ये मेरे को अलाउ कर दिया. So how this inbound and outbound rule allows us to make the connections and all. ठीक है, अभी ये मेरा IP था इसलिए मेरे को कनेक्ट करने दिया. So now any one of you just share me your screen. I will send you the IP and try hitting it. Initially वो देखो अलाउ करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है. And after some time once I add that rule, particular rule, फिर वो अलाउ करेगा कि नहीं करेगा वो चलो चेक कर लेते हैं. चलो, so who is going to share the screen? कौन लैपटॉप से ज्वाइन किया है? Anyone? राहुल, आयुष, कोई लैपटॉप से ज्वाइन किया हो कोई? Sir, I'm connected to my phone. Sorry, sir. Okay. Anyone Yes, sir. connected via laptop? Yes, sir. Okay, chalo, come on, you share your screen. I'm stop sharing. Come on, Shruti, you share your screen. Chalo, this is your Windows machine. No need to create anything. Just command R MSTSC. I will try to give you provide a virtual machine's IP. You just try to connect it. Just try connecting an RDP. कमांड आर और कंट्रोल आर जो तुम्हारे में होता है, विंडोज आर या जो भी होता है. अरे जस्ट टाइप इन दैट. ये ब्राउजर बंद कर दो अभी. ब्राउजर का जरूरत नहीं है. क्लोज द ब्राउजर. अरे आई एम आस्किंग हाउ डू यू कनेक्ट टू अ पर्टिकुलर RDP? You have MSTSC pre-built installed in your Windows OS. You need to press Windows and R. Windows and R, yeah. Windows and R. Windows कीबोर्ड में एक Windows बटन होगा और R एक बटन है. It will open your run. Yes. यहाँ पे लिखो MSTSC. MST. अरे just write down. MSTSC. Click on OK. Okay, now write down in computer that in domain name. Just write down. I'm just providing you an IP. You try to connect 20.9.12.164. Try connecting it. Connect करो. जस्ट वेट. ये तुम्हें अलाउ नहीं करेगा बिकॉज हमने वहां पे इनबाउंड रूल में अभी सिर्फ मैंने अपना खुद का IP दिया है कि अगर इस IP से कनेक्शन आए देन ओनली यू सी रिमोट डेस्कटॉप कैन नॉट कनेक्ट. ओके करो. अब चलो तुम मेरे को अपना पब्लिक IP बताओ. जस्ट टाइप ऑन गूगल व्हाट इज माई IP. जस्ट टाइप ऑन गूगल व्हाट इज माई IP. व्हाट इज माई IP. हाँ चलो क्लिक करो. Click on the first one. Yeah, tell me the IPv4. वो checking जब complete हो जाएगा. Wait for a second. Wait, चलो. बताओ मेरे को क्या है वो. Sir, 49 point. Just give me a minute. हाँ चलो बताओ. 49.37 point 113.126. 113.26. ठीक है चलो. Just wait for a moment. Service is going to be RDP. What's your name? Sir Smriti. ठीक है. Smriti 3389. allow. चलो. IP address RDP
ठीक है स्मृति, आई हैव अलाउड योर आईपी टू कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वीएम. यू कैन वेट फॉर अ मिनट एंड ट्राई कनेक्टिंग इट अगेन. ठीक है, so after a minute you just try again. ठीक है, close this browser, open that tab again, open that MSTSC again. It's below there, the remote desktop connection. Yeah, now try connecting it. ठीक है, कनेक्ट करो तो. See, now ये तुम्हें अब allow कर रहा है. Now give the username silicon and password is सब small में डालना. Password @123. Password @123. चलो, okay. Yes. So Smruti, how were you connecting it to your VMs earlier? मतलब पहले कैसे virtual machine पे connect करती थी? Sir, through the Microsoft. हाँ, through the Microsoft मतलब Microsoft का क्या? कौन से Um, application? अच्छा ठीक है कोई नहीं. चलो, now you are inside the VM. Now you have your permissions to inside a particular VM because I have added your IP. चलो, come on, stop sharing. I will share my screen again. See everyone, is my screen visible again? Yes, sir. yes, sir. Okay, see. Yes, sir. I added Smruti's IP over here. And allowed her before she was trying earlier only my IP was here, so that's why only I was able to connect to the server. लेकिन जैसे ही मैंने स्मृति का IP एड्रेस यहाँ पे ऐड किया and action I got allow, then she was allowed to enter a particular VM. So this is how configure our inbound port rules, that what traffic that we are going to allow to enter our VM. हमारे अपने वर्चुअल मशीन में दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द यूज केसेस कि क्लाइंट वॉट एवर क्लाइंट्स रिक्वायर, कि वो क्या चाहता है, कि वो अपने ही डेवलपर्स को वो डीबी सर्वर का एक्सेस देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है, व्हाट काइंड ऑफ एन आईपी एड्रेस शुड वी गेट टू एटलीस्ट एंटर टू अ पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रायोरिटी पार्ट. ठीक है, अभी देखो मैंने बोला कि 150 पे अलाउ नितिश 3389, मैंने इसे मैं अपने वीएम को अलाउ कर रहा हूँ. ठीक है, कैसे वीएम को अलाउ कर रहा हूँ? सी, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, और मैं कनेक्ट कर लूंगा क्योंकि वहां पे वो रूल एडेड है. ठीक है, सी आई एम इनसाइड माय वीएम. ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, आई नो माई आईपी. ठीक है, मैं आईपी को कॉपी करता हूँ. ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि आईपी एड्रेस आने वाला है माय ओन ऐप आईपी, destination would be any, custom will be RDP, service will be RDP. now I'm trying to deny it. ठीक है, अब मैं डिनाई करता हूँ, बट लेट ये प्रायोरिटी अगर 150 में अलाउ है, आई एम ट्राइंग टू गिव अ प्रायोरिटी ऑफ 149. ठीक है, मैं प्रायोरिटी 149 करता हूँ और मैं लिखता हूँ डिनाई अंडरस्कोर नितिश अंडरस्कोर 3389. सी, दो बन रहे हैं क्या? चलो, अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि आई हैव एन inbound rule that says deny to my network, and I have an inbound rule that says allow to my network, but the only difference is on the priority. I have priority 149 set for deny and 150 set for allow. ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि ये दोनों में से एप्लीकेबल कौन सा होगा, बिकॉज दीज टू आर एग्जैक्टली ऑपोजिट, राइट? कि ये मेरे को एक अलाउ कर रहा है, एक डिनाई कर रहा है, बट द ओनली डिफरेंस इज इन प्रायोरिटी. नाउ लेट्स चेक इट वाया आवर सर्वर कनेक्शन. ठीक है, मैं यहाँ से हटाता हूँ. वेट फॉर अ मिनट. अच्छा ठीक है, चलो ट्राई करते हैं.
व्हाट डू यू थिंक, ये अलाउ करेगा कि नहीं करेगा? It will allow. इट विल अलाउ, सर डिनाई करेगा। डिनाई करेगा। चलो डिनाई क्यों करे, चलो डिनाई कर दिया, ये मेरे को डिनाई कर दिया। ठीक है, डिनाई करने से एक चीज तो क्लियर हो गया कि कुछ ये प्रायोरिटी का तो यहाँ पे गेम है कि समथिंग इज देयर इन द प्रायोरिटी एक्शन, कि वो मेरे को भी डिनाई कर रहा है। ठीक है, तो प्रायोरिटी के बारे में थोड़ा समझते हैं पहले। ठीक है, प्रायोरिटी एक ऐसा रेंज फैक्टर है, इट्स रेंज फैक्टर, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ओवर हियर, सी रूल्स आर प्रोसेस्ड इन प्रायोरिटी ऑर्डर, द लोअर द नंबर द हायर द प्रायोरिटी, we recommend leaving gaps between 100, 200, 300, etc. so that it's easier to add new rules without having to edit existing rules. ठीक है, so this is a basic example of this. What does this priority say? ठीक है, ये प्रायोरिटी कहता है लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। इस टाइम पे मेरा 149 का जो ये जो प्रायोरिटी है दैट इज 149, सो इट इज द मोस्ट हायर प्रायोरिटी कि वो नीतीश को अलाउ नहीं करना है। But 150 says कि you have to allow, but being a greater number than 149, but the priority becomes low, so ये मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है। Now just make a change, एक चेंज करते हैं, ये 150 को मैं 148 कर देता हूँ। क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये मेरे को अब अलाउ तो कर देना चाहिए। सेव करता हूँ मैं, अपडेटिंग सिक्योरिटी रूल, चलो ये सेव हो गया। let me check। चलो देखो अलाउ नीतीश कुमार ऊपर आ गया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि whether it's trying to allow me or not। अच्छा वेट करते हैं 1 मिनट। See, now this has allowed me to enter this particular virtual machine। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ एवरीवन? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि दिस इनबाउंड पोर्ट रूल्स allows or rather helps us to configure whatever incoming traffic is to our particular server, that what are the things that we can configure using our network security group, कि ये इनबाउंड रूल्स में हम क्या ऐड कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर आईपी को हम अलाउ कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज in some case if suppose you get an access to an Flipkart server, ठीक है, Flipkart के VM का तुम्हें access मिल गया, तुम्हें VM का IP मिल गया, and you even get that password and username and password, लेकिन फिर भी ये अगर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वहां पे एडेड होगा तो वहां पे वो पक्का ये ऐसे करके कुछ ऐड करके रखे होंगे कि सोर्स है दैट वुड बी माय डेवलपर्स ओनली, जो वहां के डेवलपर्स हैं उनके जो लोकल मशीन्स हैं या फिर उनके जो कंपनी के लैपटॉप से वो उसी लैपटॉप से वो एक्सेस हो सके, ताकि क्योंकि वो उनका खुद का अपना एक पब्लिक आईपी बनता है। ठीक है, सो दिस इज माय पब्लिक आईपी, तो अगर वो तुम अपने लैपटॉप से करना चाहो तो वो वहां पे अलाउ नहीं करेगा, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो चलो अब हमने ये सब चीज कॉन्फ़िगर कर लिया, ये हमारा वेब सर्वर रेडी है। तो अकॉर्डिंग टू आवर डिजाइन और रादर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास रिसोर्स ग्रुप है, वर्चुअल नेटवर्क है, सबनेट 1 है, सबनेट 2 है, एंड वी हैव बीन रेडी विथ आवर VM1। चलो VM2 भी कॉन्फ़िगर करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अगर प्रायोरिटी सेम देते हैं तो फिर क्या होगा? अलाउ प्रायोरिटी वो लेगा ही नहीं ना, because already something is there on the same priority. For example, I have 149 at the moment. I will just try to edit it. मैं एडिट करता हूँ, ये मेरे को यहाँ पे एरर दिखाएगा, 149 डालूंगा। See, the priority you entered matches another security rule within this security network group. Priorities must be unique within existing security rules. ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, चलो एक सेटअप करते हैं अपना वेब सर्वर को भी। हाँ भाई कैंसिल हो जा। चलो अगेन, now who is going to tell creating virtual machines? अरे भाई कोई तो आ जाओ। This will be my web server. Let's take again this Windows 2016.
free tiers available. Let's take this one. Again, let's give silicon password. Password @123. ठीक है, RDP अलाउ करते हैं इस पे। नेक्स्ट चलते हैं डिस्क पे, नेक्स्ट चलते हैं। सो वी वांटेड दिस इन द सेम सबनेट, ठीक है, ये सबनेट 1 पे ही रहेगा। नेटवर्क ग्रुप बेसिक्स रहने देते हैं, अलाउ ये कर देते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट मॉनिटरिंग, नेक्स्ट एडवांस्ड, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। क्रिएट। चलो ये डिप्लॉय हो रहा है। इन द मीन टाइम वी क्रिएट अनदर VM, ओके। हाँ सॉरी, so this time only thing the change was for this particular VM that this time we are going to provide it with a private IP. We won't be giving a public IP to this particular VM, and that is going to be created in subnet 2. चलो सबनेट 2 पे चलते हैं, एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, तब तक उधर वो डिप्लॉय हो जाएगा। It would be NSGRG. Virtual machine name would be NSG. Sorry, IDB server. ठीक है, let it be as it is, let it be as it is. Give the username as silicon. चलो RDP कनेक्शन अलाउ कर देते हैं। नेक्स्ट डिस्क, नेक्स्ट नेटवर्किंग। The only change that I was talking about that it would be created in my subnet 2, ठीक है, and we are not going to give this a public IP. हम इसे public IP नहीं देंगे, we will be just we won't be providing a public IP to it. इसे none कर देते हैं। ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट मॉनिटरिंग, नेक्स्ट एडवांस्ड, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। चलो लेट्स वेट, तब तक ये कॉन्फ़िगर होता है। वैलिडेशन पास्ट। सी वी हैव आवर वेब सर्वर रेडी ओवर हियर। अब हम इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इट हैज इट्स ओन पब्लिक आईपी इन द नेटवर्किंग। हमें इसके नेटवर्किंग कुछ करना नहीं है, बिकॉज वेब सर्वर को ऐसे ऐसे रखना था। वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट आवर डेटाबेस सर्वर फॉर द मोमेंट, कि डेटाबेस सर्वर तो एक तो बाहर से कोई एक्सेस ना कर पाए, और इंटरनली भी हम वेब सर्वर से उसे एक्सेस ना कर पाए। तो पहले हम एक ट्राई करते हैं वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए। सो दिस इज माई जंप सर्वर। अभी मैं जंप सर्वर के अंदर हूँ। मैं एक और काम करता हूँ, आई विल क्रिएट अनदर, I will create friendly name would be, this is my web server, would be silicon. What's the public IP? This was my public IP. ठीक है, let's connect it. इसे कर देते हैं web server. Let's connect to the web server. Continue.
लेट्स वेट। हमारा सर्वर डिप्लॉय हो गया, देख लेते हैं। चलो वी हैव आवर जंप VM ऑलरेडी डिप्लॉयड, वी हैव आवर वेब सर्वर डिप्लॉयड। अब हम डीवी सर्वर को भी देख लेते हैं कि डीवी सर्वर के पास क्या क्या है। डीवी सर्वर के पास एक पब्लिक आईपी तो नहीं है। अब डीवी सर्वर के पास इट हैज इट्स ओन प्राइवेट आईपी, इसके पास एक अपना प्राइवेट आईपी है। सो नाउ प्लीज टेल दैट कैन आई कनेक्ट टू अ पर्टिकुलर VM वाया एन प्राइवेट आईपी? क्या हम एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को हम प्राइवेट आईपी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? एनीवन विद द आंसर? सर सेम नेटवर्क पे होने से कर सकते हैं, ऑब्वियसली। नेटवर्क होने से नहीं ठीक है, कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है। इफ सपोज वी हैव आवर प्लस पॉइंट दैट दीज ऑल आर क्रिएटेड ऑन द सेम VNet, ये सेम वर्चुअल नेटवर्क पे है, देन वी कैन एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर डेटाबेस सर्वर बाय द प्राइवेट आईपी ऑफ द डेटाबेस सर्वर। We can create a remote connection via our VM1 or VM2 to the VM3 via the private IP of the DB server। ये हम लोग अभी क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर गाइज कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? These are things that you have to practice and understand. Private IP क्या है, public IP क्या है? So this is my web server. This is my web server. You can just look at it. Give me a minute. इसको यहाँ ड्रॉप करके रखते हैं। ठीक। So this is my web server and this is my jump server. ठीक है, अब हम एक ट्राई करते हैं। पहले हम अपने जंप सर्वर से आई विल ट्राई टू लॉग इन टू माई DB सर्वर MSTSC। Now I try to give the private IP of my DB server. See, this is my private IP of my DB server 10.0.2.4. I haven't provided a public IP to my DB server. मैं ऐसे कॉपी करता हूँ। This is my connect. Username is Silicon. Password is @123। सही है, चलो रिमेम्बर। ओके, नाउ लेट अस सी ये मेरा अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वी आर कनेक्टिंग टू अ DB सर्वर वाया प्राइवेट IP। सी, वी आर बीइंग अलाउड टू एंटर the DB server using the private IP. If suppose you go to the networking section of this particular IP, you will find of this particular server, you will find that this private IP is same as this one that is showing over here. See, अब हम अपने DB सर्वर के अंदर आ गए हैं। क्लियर? ठीक है, in the same way in our web server, this is my web server, I will try to connect to the DB server। पहले यहाँ से इसको कट कर लेते हैं बिकॉज ये सेशन टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, जस्ट क्लोज इट, रिमोट कनेक्शन विल बी क्लोज्ड। मैं DB सर्वर को एक्सेस कर पा रहा हूँ यूजिंग द प्राइवेट IP ऑन माय जंप सर्वर। द सेम आई कैन डू इट, विंडोज आर MSTSC। So this is my web server. I'm trying to connect to the DB server via the private IP। ये मेरे को अलाउ कर रहा है। Silicon password @123। yes, see, ये मेरे को भी अलाउ कर दिया to enter inside my DB server। ठीक है, अब चलो, अब मेरे को बताओ, anyone, it's an open question to all, that my problem statement is that I want the connection to my DB server only via my jump server, not via my web server. How can I configure that? Anyone with the answer, they can just raise their hand and or rather can unmute and tell me the answer, that what are the steps that I can do for it.
anyone, based on whatever we did configuration on our jump VM in the initial hour of our class, कि हमने कैसे वहां पे inbound rules को delete किया, फिर क्या क्या add किया. Anyone, just based on the relevance. Anyone, how can we do Sir. that? Okay, चलो. डीवी सर्वर के जो इनबाउंड पोर्ट्स है वहाँ पे ठीक है. जाके हम लोग वो ठीक है. अलाउ कर देंगे वेब सर्वर के आईपी एड्रेस को. ठीक है, तो चलो पहले मैं डीबी सर्वर के नेटवर्किंग पे चला गया. अब मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि इसके पास एक ऑलरेडी एनएसजी बना हुआ है जो कि बोल रहा है आरडीपी को अलाउ करने के लिए. तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? डिलीट करेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट आरडीपी फॉर एनी सोर्स. चलो मैं डिलीट कर दिया. अब तुम क्या बोल रहे थे? सर क्रिएट करेंगे एक ठीक है, क्रिएट करेंगे. सोर्स क्या रहेगा? सोर्स रहेगा सर वो आईपी IP. एड्रेस. ठीक है, वेब तो सर्वर ये हाँ, जंप के प्राइवेट आईपी से भी काम हो जाएगा बिकॉज दे आर ऑन द सेम नेटवर्क. ठीक है, तो ये इसका प्राइवेट आईपी क्या है? 10.0.1.4. ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि अगर इस सोर्स से आए, इस सोर्स आईपी एड्रेस से आए, देन यू कैन अलाउ services to RDP allow, and I let this set the priority of this particular thing to 200, और मैं इसे बोल रहा हूं allow jump server 3389. ठीक है. अब in the same way, I don't want to allow my web server to enter this particular VM. So again, अब क्या करना है बताओ मेरे को? सर क्रिएट करेंगे एक दूसरा जिसमें हम लोग उसको डिनाई कर देंगे. ठीक है, क्रिएट करेंगे. अगेन द सोर्स वुड बी आईपी एड्रेस. ठीक है, सोर्स वुड सर वेब सर्वर के आईपी एड्रेस को डालेंगे, पब्लिक आईपी एड्रेस. वेब सर्वर के पब्लिक, प्राइवेट को भी तो हो जाएगा, सेम नेटवर्क पे है ना. हाँ सर. So why do we provide the public? ओके सर प्राइवेट. ठीक है, we try to give the private IP. ये destination custom ये मेरा RDP लेगा, and now we are going to deny it. ठीक है, let's set the priority 200 already हो चुका है. Let's give it 300, and we will write over here deny web server underscore 3389. चलो ऐड कर देते हैं. चलो, सिक्योरिटी रूल इज क्रिएटेड नाउ ओवर हियर. ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करें? सबसे पहले चेक करते हैं कि हम इसे वेब सर्वर से एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, ये रहा मेरा वेब सर्वर, अभी ये ऑलरेडी कनेक्टेड है. लेट्स डिस्कनेक्टेड फर्स्ट. ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा देर. नाउ वी आर इनसाइड आवर वेब सर्वर. नाउ विल बी डूइंग MSTSC. यही था 10.0.2.4. दैट वाज माय प्राइवेट IP ऑफ DB server. We try to connect it, and you will see that I'm not able to लेट्स वेट. ठीक है, चलो अब ये वेब सर्वर से मेरा कनेक्शन चला गया है टू माय DB सर्वर. अब मैं DB सर्वर पे एंटर नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, अब हम इस पे चलते हैं. दिस वाज माय जंप सर्वर. नाउ आई ट्राई टू डू MSTSC. अब मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से जाने के लिए टू माय DB सर्वर. ये मेरे को अलाउ कर देना चाहिए. सी, इट हैज अलाउड मी टू एंटर अ पर्टिकुलर द पर्टिकुलर DB सर्वर, क्योंकि हमने यहाँ पे इनबाउंड रूल में वो ऐड करके रखा हुआ था. तो सी, ये कैसे काम कर रहा है? ऑल दिस इनबाउंड रूल्स, द आउटबाउंड पोर्ट रूल्स, हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग ऑन द बैक एंड. कि ये सारी चीज ऐड करने से हमारे सिक्योरिटी ग्रुप्स कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं. If suppose there is a requirement that client wants that particular IP needs to be blocked, तो हम उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं using network security group. See the number of priorities we can even set
इट्स फ्रॉम 100 to somewhere around 65,000 समथिंग, इधर यहाँ तक जाता होगा. एंड इट्स इवन ये मेरे को इवन इतना बताता है कि हाउ डू यू डिफाइन और हाउ डू यू जंप द priorities, so that to manage the priorities it's easier to add new rules without having to edit existing rules. So this is all about the inbound port rules. अब हम कुछ और चेक करते हैं. अब आउटबाउंड पोर्ट रूल्स मतलब क्या? अब आउटबाउंड पोर्ट रूल्स के लिए मैंने तुम्हें बताया कि एनीथिंग दैट गोज आउट ऑफ द वर्चुअल मशीन. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस वाज माय वेब सर्वर. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि द डीबी सर्वर शुड नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, मतलब हम डीबी सर्वर से इंटरनेट को एक्सेस ना कर पाए. अभी देखते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर जाते हैं. उससे पहले थोड़ा सर्विस मैनेजर पे चलते हैं. सर्वर मैनेजर पे एक कॉन्फ़िगर करते हैं. सर्वर मैनेजर, ठीक है. इसमें लोकल सर्वर में एक इनहैंस सिक्योरिटी होता है, इनहैंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन. इसको भी ऑफ कर देते हैं. ठीक है, लेट्स वेट. ठीक है, चलो. नाउ आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू माय इंटरनेट. अब हम इसके लिए पेज खोलते हैं. लेट्स ट्राई सर्चिंग आउट फॉर google.com. ओके, google.com. Chalo. So now you can see that I'm able to access the internet from my DB server. This is my DB server 10.0.2.4. ठीक है, अब हमारे पास एक ऐसा यूज केस आया that you need to deny all the access to the internet from to the DB server. ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम आउटबाउंड पोर्ट रूल्स में दिस इज माय डीबी सर्वर, इसके आउटबाउंड पोर्ट रूल्स में एक आउटबाउंड पोर्ट रूल ऐड करेंगे. ठीक है, ऐड एन आउटबाउंड पोर्ट रूल. द सोर्स वुड बी एनी सोर्स पोर्ट रेंजेस वुड बी एनी पोर्ट रेंज. डेस्टिनेशन वुड बी सर्विस टैग. ठीक है, ये सर्विस टैग में अगर जब भी ये इंटरनेट को एक्सेस करना जाए, ठीक है, सर्विस वुड बी कस्टमर, डेस्टिनेशन पोर्ट रेंजेस इसको एनी कर देते हैं. ठीक है, अगर ये किसी भी पोर्ट रेंज पे गया, देन वी आर गोइंग टू डिनाई इट. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं. अगर सोर्स से किसी भी पोर्ट रेंज पे गया, डेस्टिनेशन मेरा सर्विस टैग है और डेस्टिनेशन सर्विस टैग मेरा इंटरनेट है, जब भी वो इंटरनेट को हिट करने जाएगा, देन वी आर ट्राइंग टू डिनाई इट. ठीक है, अब मैं इसे बोल देता हूं डिनाई इंटरनेट. ठीक है, इससे पहले हम एक चीज चेक कर लेते हैं. इसके जो कमांड प्रॉम्प्ट पे, वी हैव कमांड प्रॉम्प्ट ओवर हियर. ठीक है, this is ping is just a command just to check the connectivity to a particular website. So whenever we ping google.com, it will send something from our IP and hit their Google's IP. Okay, request timed out. Has this rule been added? pinging google.com. अच्छा, रिसीव 0. अच्छा, यहाँ पे कुछ और चेक कर लेते हैं. लेट्स चेक फॉर फेसबुक. ठीक है, चलो यहाँ पे मेरे को ये एक्सेस हो रहा है, हमारे पास अभी भी इंटरनेट एक्सेस है. ठीक है, अब हम इस रूल को पर्टिकुलरली ऐड कर देते हैं, डिनाई इंटरनेट को. अभी तक हमने ऐड नहीं किया था. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड इट.
चलो, डिनाई इंटरनेट, प्रायोरिटी हमारा 100 सेट है, ठीक है। ये इंटरनेट को मेरे को एक्सेस करने नहीं देगा, ठीक है। लेट्स क्लोज इट, ट्राई ओपनिंग द ब्राउजर अगेन, वेट फॉर अ मोमेंट, चेक कर लेते हैं google.com, लेट्स सी, सपोज इट, सी, अब मेरे को google.com यहाँ पे नहीं खुल रहा है। This is because I have added an outbound rule to deny the internet. Internet deny हो गया है, इसलिए ये मेरे को allow करने नहीं दे रहा है। So this is how we are going to configure the outbound port rules for a particular thing. ठीक है, inbound हो गया, outbound हो गया। चलो, इसमें तो अभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। Now let's try to delete it. अगर ये delete कर देंगे, then we are going to able to access to the internet as well. चलो, this is deleted, this page cannot be displayed, ठीक है। Now again close it, open the browser again, let's write google.com, let us check whether it's going to allow or not। ये टाइम लगता है, this network security group sometimes it takes a minute or it takes a buffer time to at least reflect it to the server, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इमीडिएटली तुम वहां पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप डालोगे और वो वहां पे अप्लाई हो जाएगा। सो इट ऑलवेज हैज इट्स ओन बफर टाइम, वो उसके बेसिस पे ये काम करता है। वेट फॉर few 4 minutes, google.com, चलो, see, we have restored the internet connection, we have restored the internet connection because we deleted one of the rules over here, ठीक है। चलो, अब समराइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या किया है यूजिंग दिस diagram. So do you need this diagram to be sent in your group, or rather you can take the screenshot? Anyone? Guys, are you there? Yes, sir. So we will take the screenshot. Okay, you will take the screenshot, or rather the recordings will also will be present over there on the application or the website. Okay, so अब हम लोग एक बस समराइजेशन कर लेते हैं that what are the things that we have done today। हमने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया, उसके अंदर हमने सबनेट्स बनाए, सबनेट 1, सबनेट 2, उसके अंदर VM1, VM2, VM3 को कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। अब हमने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये NSG किसी टर्मिनोलॉजी से काफी सिमिलर लगा क्या कि अच्छा ये NSG तो हमारे लोकल मशीन्स पे भी होते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट दिस फायरवॉल? एनीवन? फायरवॉल पता है ना सबके यहाँ, फायर मतलब सबके सिस्टम में फायरवॉल इनेबल रहता है बाय डिफॉल्ट, Yes. ठीक है। Yes, sir. This network security group acts as a firewall to our virtual network, okay। अब virtual network के अंदर अगर वो NSG अगर applicable है to a particular VM, तो वो VM के NIC पे वो apply हो जाएगा। So this acts as a firewall. For example, अगर मान लो ये मान लो एक घर है, ठीक है, और इसके बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगा कर रखा है। This resistance is basically this resistance, or rather you can talk about it as a wall. For example, on some day, if suppose something happens on this portion of the house, but due to this resistance or this wall, this whatever happenings to this side of the house won't be coming to that side of the house, ठीक है। So this acts as a resistance. तो यही नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कहता है कि even if my jump server or the public IP that has been provided gets corrupted someday, or something happens, some cyber attacks happen, our DB server remains intact, क्योंकि DB server पे हमने काफी एक NIC लगा के रखा है that is not open to the internet। ना हम इंटरनेट यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं, ना कि यहाँ पे सबको एक्सेस है यहाँ आने के लिए। So that's the beauty of NSG
creates and resistance kind of a thing in terms of in terminology of networking, ताकि वो हमें allow or deny कर सके, configure कर सके whatever traffics that are coming to the resource or coming out of the resource. Okay, so that's your network security group for you. Okay, so I just summarized it. If suppose you have any doubt, you can ask me as well. I will stop share this. I will stop the recording first.